ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ بہاول نگر شہر بھر میں مہنگائی میں اضافہ۔ مارکیٹ میں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غریب آدمی کے لیے ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک مقبول احمد سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں مبارک گیٹ بہاول نگر پر۔ اگر بہاول نگر کے حوالے سے میں بات کروں تو یہاں بہاول نگر مارکیٹوں میں جو ہے لوگ آ رہے ہیں اپنے گھر کی چیزیں جو ہے پرچیز کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے محنت کش لوگ جو ہے وہ دن کے اوقات میں جو ہے وہ اپنے کام پہ مصروف ہوتے ہیں اور رات کے گھر جاتے ہوئے جو ہے وہ مارکیٹوں سے چیزیں وغیرہ لیتے ہیں گھر کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ یہاں جو مارکیٹ میں لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، انسان کی پہنچ سے دور ہے۔ جتنی آمدنی ہے اس سے زیادہ خرچ ہے۔ اچھا یہ بتائیں دالیں اور چینی اور پتی وغیرہ جو ہے اسی طرح چنے ہیں، ان کی قیمتیں اب کوئی بڑھی ہیں؟ جی ہر قیمت بڑھی ہے، چنے بھی بڑھے ہیں، آئل بھی بڑھا ہے، گھی بھی بڑھا ہے، آٹا بھی بڑھا ہے۔ جو مارکیٹ میں لوگ آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تو بنا دی گئی ہیں لیکن وہ ان کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہیں۔ گھی جو ہے پہلے فی کلو جو ہے وہ 480 روپے تھا، اب 520 روپے جو ہے فی کلو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دال چنے جو ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آنے والے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جی رحیم یار خان میں مہنگائی سے شہری پریشان ہے۔ شہریوں کے مطابق دکاندار من مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں۔ شکایات کے باوجود پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کارروائی سے گریزاں ہیں۔ دیکھتے ہیں اپنے نمائندے عزیر الحق چودھری کی یہ رپورٹ۔ رحیم یار خان میں ناجائز منافع خور متحرک ہو گئے۔ مصنوعی مہنگائی نے شہریوں کو پھلوں، سبزیوں اور مرغی کے گوشت سے دور کر کے رکھ دیا، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی شہریوں کو ریلیف فراہم نہ کر سکی۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 600، مٹن 2000، جبکہ آئل اور گھی کی قیمتوں نے عام آدمی کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں۔ فروٹ والے اور اس کے بعد یہ سبزیوں والے یہ اپنے من مانے ریٹس جو ہے نا جب جی چاہتا ہے دوپہر کو صبح کم کر دیتے ہیں، دوپہر کو زیادہ کر دیتے ہیں، دوپہر کو کم کر دیتے ہیں۔ ہر دکان کا اپنا اپنا ریٹ ہے اور کوئی 550 کوئی 650، دیہات میں تو اس سے زیادہ ریٹ ہے۔ کسی چیز کا سر یہاں ریٹ نہیں ہے۔ سبزیاں ہو گئی، فروٹ ہو گیا، گوشت ہو گیا، دالیں ہو گئی، مطلب جتنا بھی کنٹرول پرائس کمیٹیاں یہاں پہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ شہریوں نے موجودہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب آدمی مہنگائی کے اس دور میں 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان۔ کھیوڑا اور گردونواہ میں مہنگائی کا طوفان۔ دالیں، گھی، سبزی اور فروٹ دہاڑی دار طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ شہر اور گردونواہ علاقے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے دہاڑی دار طبقے کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہاڑی دار طبقہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے یا بجلی گیس کے بھاری بل ادا کرے۔ دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کر کے سبزی، فروٹ، دالیں اور دیگر روزمرہ اشیاء خورونوش کی منہ بولی قیمتیں وصول کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ راولپنڈی مورگا روڈ کی تعمیر ٹھیکیدار ادھورا کام چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ شہریوں کو شدید سفری مشکلات کا سامنا۔ راولپنڈی مورگا گاؤں سے ایلیٹ تک روڈ کی تعمیر کا کام 8 ماہ قبل شروع کیا گیا تھا جو کہ ناقص مٹیریل کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ نے نوٹس لیا تھا جس کے بعد ٹھیکیدار نے دوبارہ کام شروع کیا لیکن کام مکمل کیے بغیر ٹھیکیدار منظر عام سے غائب ہو گیا۔ عوامی حلقوں نے ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کوٹ مومن میں فیسکو وابٹا کا انوکھا کارنامہ۔ بجلی پول کے تار گھر کے اندر نصب کر دیے۔ شہری موت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ کوٹ مومن کے نواحی گاؤں نصیر پور کلا میں فیسکو وابٹا نے بجلی پول کے تار گھر کے اندر نصب کر دیے جس سے شہری موت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ صحن میں لگی تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ شہریوں نے بتایا ہے کہ وابٹا کے غفلت اور لاپرواہی کے باعث متعدد بار بچوں کو کرنٹ بھی لگ چکا ہے۔ وابٹا آفس میں کئی مرتبہ کمپلینٹ کرنے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے وابٹا کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور گھر میں لگی تاریں فوری طور پر اتارنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے بڑی خستہ حالی کا شکار۔ چھت کی انتہائی بوسیدہ حالت کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعے کا خدشہ ہے۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اقاضیہ کی بلڈنگ انتہائی بوسیدہ حالت میں ہے۔ دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ کسی وقت بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا خدشہ۔
कई बार आला हुकाम के नोटिस में ये मसला लाया गया, लेकिन किसी के कान पे जूं तक ना रेंगी। इस सर्द मौसम में बच्चे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। वालिदैन और अवाम इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हुए कहा है कि फिलफोर बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग तामीर की जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खोड़मंगिया सिर्फ 4 केनाल पर मुश्तमिल है। 8 केनाल जगह खाली पड़ी है। इस पर प्लेग्राउंड और कमरे तामीर करके स्कूल की तौसी की जाए। खोड़ के करीब गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मगिया 4 केनाल पर मुश्तमिल 1998 में हुकूमत पंजाब ने स्कूल हज़ा को मिडल का दर्जा देकर इसी जगह मजीद चंद कमरे तामीर कर दिए। हुकूमत पंजाब ने प्राइमरी स्कूल को हाई का दर्जा देकर 4 केनाल में ही मजीद कमरे तामीर करके इंतहाई तंग कर दिया, जबकि इससे मुल्हका 8 केनाल जगह खाली पड़ी है। वज़ीर तालीम पंजाब से अवाम का मुतालबा है कि बाकी जगह पर प्ले ग्राउंड और मजीद कमरे तामीर कर दिए जाएं ताकि तालिबात और असातिज़ा के लिए आसानी हो। कोटअदू म्यूनसिपल कमेटी के अमले की हड़ताल 12वें रोज भी जारी। शहर भर में गंदगी के अंबार लग गए। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का कहना है कि 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से स्कूल फीस अदा न करने पर बच्चों को निकाल दिया गया है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। 12 रोज से कोई अफसर भी दादरसी को नहीं आया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी के मुताबिक तनख्वाहों की ग्रांट के लिए लेटर लिख दिया गया था। 16 तारीख को ग्रांट आना थी, उसी माह ग्रांट आते ही तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। खानेवाल में नौजवान खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हम स्टूडेंट्स हैं, खेल हमारा शौक है, जबकि एक तरफ हुकूमत पंजाब भर में खेलता पंजाब प्रोग्राम्स करवा रही है, जबकि दूसरी तरफ खानेवाल का स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को ग्राउंड में खेलने के लिए पैसों का मुतालबा करता है और स्पोर्ट्स ऑफिसर ने इस पर झूठी FIR दर्ज करवाई है। हमसे ही मुल्क और कौम का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। खिलाड़ियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DC खानेवाल और DPO खानेवाल से नोटिस लेकर FIR खारिज करवाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये खानेवाल में जब से ये वाला DSO है, इसकी वजह से खानेवाल में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ना होने के बराबर हैं। और ये आए दिन प्लेयर्स के ऊपर झूठी FIR दी जा रही हैं और हमारे ऊपर भी झूठी FIR दी गई हैं। एक तरफ हुकूमत पंजाब खेलता पंजाब करवा रही है और दूसरी तरफ हमारे खानेवाल के जो DSO साहब हैं वो आए रोज़ प्लेयर से फ़ीस का मुतालबा करते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं। कभी मुलाजमों को भेज देते हैं, कभी खुद आते हैं, हमारे कोचेस से बदतमीज़ी वगैरह करते हैं। कुत्तों की भरमार, कुत्तों के काटने की वैक्सीन न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जफर वसीम की रिपोर्ट में। सियालकोट में आवारा कुत्तों की बहुतात हो चुकी है और आवारा कुत्ते कसीर तादाद में सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे कि जिंदा तो जिंदा कब्रिस्तान भी आवारा कुत्तों से महफूज नहीं रहे कि कब्रिस्तान में एक जानिब कुत्ते जो है वो यहाँ पर कब्रें खोद रहे हैं तो दूसरी जानब शहरियों को काट रहे हैं। इधर सर बहुत सारे कुत्ते आते हैं, आवारा कुत्ते बहुत सारे आते हैं। आवारा कुत्ते से लोग डरते हैं कि ये कभी काट ना ले। जबकि हालात ये हैं कि सरकारी अस्पताल में कुत्तों के काटने की वैक्सीनेशन जो है वो इंतहाई कामयाब है, बल्कि अदम दस्तयाब है, जबकि ओपन मार्केट में जो कुत्तों के काटने की वैक्सीनेशन है वो इंतहाई महंगे दामों है कि शहरी शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं कि वो जाएँ तो जाए कहाँ। आवारा कुत्तों के काटने की जो पेशेंट काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जो इसकी वैक्सीनेशन थी उसकी पहले कीमत थी 1350 रुपये, अब वो फ़िलहाल तो शॉर्ट है, तो उसकी वजह से ना पेशेंट काउंट काफ़ी बढ़ गया हुआ है मार्केट में। डेली पेशेंट फिर रहे होते हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आवारा कुत्तों को तलब किया जाए या इन पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। कहाना और गिरदोनवाह में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, जगह जगह जमा गंदे पानी से शहरी परेशान हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे सैयद माजिद अली शाह की रिपोर्ट। एक तरफ मुल्क भर में तेजी से तरक्याती काम जारी है तो दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अपने हल्के यानी 124 में मतअद्दद इलाका जात के अवाम बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के रोने रोते हैं। देखो ये रास्ता, साढ़े बच्चे यहाँ पे गटर में गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो हमारा जीना आराम हुआ पड़ा यहाँ पे। हना के इलाका वार्ड नंबर 9 कच्चा शहजादा रोड दीगर इलाका जात में सीवरेज की अदम दस्तयाबी शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी है, जिसके बाइस गुजरगाह मुतासर है और गंदे पानी से मुजर बीमारियां परवान चढ़ रही हैं। देखो जी मेन रोड बन गए ने ते जेड़ी साडी गली है बिस्मिल्ला मस्जिद दी
ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 में मुस्लिम लीग नून के साबका दौरे हुकूमत में वासा की जानिब से सब डिवीज़न कान्हा तो बना दी गई, लेकिन बाअसर सियासी शख्सियात की अदम तवज्जो के बाइस कान्हा का मशरकी, जनूबी और शमाली इलाका जात इसमें शामिल ना किए गए। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जगह जगह पर तेजी से तरक्याती काम जारी हैं, तो दूसरी तरफ कान्हा के मतअद्दद इलाका जात में सीवरेज के मसाइल ने सर उठा लिए हैं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद माजिद अली शाह, ABN न्यूज़, कान्हा। खानका डोगरा में म्यूनसिपल कमेटी का सफाई सुथराई का काम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल होते ही शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर ताफुन फैलाने लगे। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में म्यूनसिपल कमेटी का सफाई सुथराई का काम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल होते ही पूरा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। कंपनी के पास मशीनरी का ना होना और अदम प्लानिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। सफदराबाद रोड, मोहल्ला असलामपुरा, लाल हवेली रोड, मेन गुजरावाला रोड, हस्पताल रोड, कमेटी बाजार में लगे गंदगी के ढेर उठाने के लिए मुतलका अमला कई दिन चक्कर नहीं लगाता। गंदगी के लगे ढेरों से उठने वाले तूफान ने शहरियों का नाक में दम कर रखा है। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਲਡ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵੀ नहीं होते। शहर भर में सफाई के नाकस इंतजामात की बड़ी वजह कंपनी के ठेकेदार के पास कई शहरों की सफाई के ठेके होना है, जिसकी वजह से इस शहर में ना तो कोई तवज्जो नजर आ रही है और ना ही कोई प्लानिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम शर्मिंदा तबदील होता नजर नहीं आ रहा। गंदगी फैलने से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग की जिम्मेदारान की बेहिस्सी, लाखों रुपए मालियत की मशीनरी म्यूनसिपल कमेटी के गैराज में खुले आसमान तले जंग आलूद होकर कबाड़ में तब्दील, जिसमें ट्रैक्टर्स, कचरा उठाने वाली हाथ रेडियां, वाटर एग्जॉस्टिंग मशीनों समेत दीगर महंगे आलात शामिल हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद देखते हैं आसिफ नदीम की ये रिपोर्ट। सरकार का माल मुफ्त, दिल बेरहम, म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग के जिम्मेदारान की बेहिसी, लाखों रुपए मालियत की मशीनरी म्यूनसिपल कमेटी के गैराज में खुले आसमान तले जंग आलूद होकर कबाड़ में तब्दील, जिसमें ट्रैक्टर्स, कचरा उठाने वाली हाथ रेडियां, वाटर डिसाल्टिंग मशीनों समेत दीगर महंगे आलात शामिल हैं। म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जी के बायस नशइयों की मौजें जंग आलूद होकर कबाड़ में तब्दील होने वाली मशीनरी से लोहा चुराकर अपना ईंधन पूरा करने लगे। म्यूनसिपल कमेटी की बेहिसी पर शहरियों का शदीद रद्द अमल। मशीनरी उत्थे पई है ना म्यूनसिपल कमेटी दे विच, ट्रैक्टर ने कोई गड्डियां भी वगैरह पईयां ने ते खुले आसमान थले पईयां वा ते जेड़ा ਉਹ आवाम ਦਾ ਪੈਸਾ, टैक्सां ਦਾ पैसा वा जेड़ा सरेआम ज़ाया हो रहा वा, उत्थे कोई बंदा पुछने वाला नहीं। सरकार की जानब से दी गई मशीनरी और आलात का मकसद शहर को साफ सुथरा रखना है, मगर यहाँ लाख रुपए की मशीनरी तबाही की नज़र, जबकि शहर में जगह जगह गंदगी से माहौल आए रोज तफन ज़दा रहने लगा। गटर का उबर है ना, उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए। मशीनरी पड़ी हुई है, वो साल गड़ रही है, लेकिन यहाँ तक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ये हमारी म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और कोताही है। शहरियों की हुकाम बाला से खराब मशीनरी को कबाड़ की कैटेगरी में शामिल करने की बजाय इसकी मरम्मत करके ज़ेर इस्तेमाल लाकर लाखों रुपए के कर्ज में धंसी म्यूनसिपल कमेटी सरकार को मजीद नुकसान से बचाने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी की वजह से मियाँचनू शहर की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से जगह जगह पानी के तालाब बन चुके हैं। अवामी नुमाइंदे भी शहरियों के मसाइल में कमी न ला सके। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा शुएब अफजल की ये रिपोर्ट। पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब का नारा एक ख्वाब बन गया। मियाँचनू के अवाम सड़कों की टूट फूट और नाकस सीवरेज की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। उबलते गटरों की वजह से जगह जगह पानी के जोड़ बन चुके हैं, जिनकी वजह से गुजरना भी महाल है। शहरी इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं कि पानी निकला पड़ा है, गटरों के ढक्कन नहीं है और ये पूरा शहर जो है ना लावारस हुआ पड़ा है और गंदे पानी की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी है। और ये कम अज़ कम 40 साल पहले का ये पाइपलाइन पड़ी हुई है और उसी पे ऊपर मियाँचनू पूरे शहर का गुजारा हो रहा है।
हुकाम बाला से हम ये अपील करेंगे कि इसके बारे में कोई गौर व फिक्र किया जाए, सोचा जाए कि ताकि जगह जगह से जो गंदा पानी निकल रहा है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, ये कम से कम इसका सद्देभाव। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के साथ साथ अवामी नुमाइंदे जो इलेक्शन से पहले शहर को पेरिस बनाने के ख्वाब दिखा रहे थे, कामयाबी के बाद कहीं नजर भी नहीं आते। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ शुएब अफजल, ABN न्यूज़, मियां चन्नू। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात हैं। वकला के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार में कई बार नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से पहले भी वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। वकला ने हुकूमत से डिस्ट्रिक्ट बार के आने और जाने वाले रास्तों की सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, हम डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं। हमारे साथ जो सीनियर कानूनदान मलिक अख्तर नदीम एडवोकेट मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से क्या मसाइल हैं। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो सिक्योरिटी का है, क्योंकि कचहरियों में दाखिली रास्ते बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का नाक़िस इंतज़ाम होने की वजह से कोई प्रॉपर सिक्योरिटी ना है, जिसकी वजह से कई मरतबा जो है वक़ूआ जात हुए हैं जिसमें मर्डर भी है। तो मेरी हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि एक तो सिक्योरिटी का जो है निज़ाम दुरुस्त किया जाए। जी, इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बार में आने के लिए बहुत से रास्ते हैं जो बिल्कुल नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से कई सारे जो वाक़यात हो चुके हैं जिनमें लोग मर्डर भी हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कॉलोनी है वो वकला के नाम पर दी तो गई है, लेकिन वकला को उनका मालिक नहीं बनाया गया। हुकूमत का चाहिए कि वो उस वकला को उसका मालिक बनाया जाए। जी, शेखपुरा के रहायशी 24 साला मेहनत कश को नामालूम अफराद ने थाबुल नहर के करीब फायरिंग करके मौके घाट उतार दिया। मकतूल आमिर अली की लाश को सदर शेखपुरा पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल को रात नामालूम शख्स की फोन कॉल आई और वो घर से भाग गया, जो रात भर घर न पहुंचा और मकतूल की लाश थाबुल गांव के करीब से बरामद हो गई है, जिसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी गायब है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दौरान डकैती मज़ाहमत पर नामालूम मुल्ज़िमान ने आमिर अली को कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन की जानिब से दी जाने वाली तहरीरी दरख्वास्त की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खानेवाल चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी इलाकों मालियत के जेवरात से महरूम हो गए। थाने का कहना इलाके में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। कबीरवाला के रिहायशी मोहम्मद चांद लाहौर से वापस खानेवाल पहुंचा, रिक्शे पर घर जा रहा था। 4 नामालूम मुसल्ला अफराद गन पॉइंट पर मोबाइल फोन, घड़ियां और 35,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात राजपूत कॉलोनी के रिहायशी के घर से नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर 5 तोले सोना, 15 तोले चांदी, 50,000 रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। थाना कहना पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ चोरी डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में थाना तरखावाला की हदूद में पुरानी दुश्मनी के नतीजे में फायरिंग से 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। थाना तरखावाला की हदूद में चिश्तियावाला मोड़ के करीब पेशी पर जाने वाले शहरियों पर मुखालफीन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुप मोटरसाइकिलों पर सवार थे। जख्मियों को पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल जबकि बाद रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया। कोटी सतिया में नाखिल बेटे का मां पर तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने डंडे मारकर मां का हाथ जख्मी कर दिया। थाना कोटली सतिया पुलिस से मां की दरख्वास्त, बेटे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मां की दरख्वास्त और बेटे को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट मेठन ABN न्यूज की खबर पर एक्शन, जंगलात का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और रेवेन्यू की मामलत से रक्षिकारपुर में कब्जा माफिया से जंगलात का रकबा वागुजार करवा लिया गया। दर्जनों अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इलाका मकीनों के मुताबिक मतलूबा फंड से कमी के बायस महकमे जंगलात के रकबे पर प्लांटेशन न होने की वजह से जमीन पर 62 अफराद काबिज होने लगे। ABN न्यूज पर नशर होने के बाद महकमे जंगलात, महकमे रेवेन्यू और पुलिस से मुश्तरका ऑपरेशन करके रक्षिकारपुर में 100 एकड़ से ज्यादा का रकबा वागुजार करा लिया और कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। DFO असद इमरान का कहना है कि जंगलात के रकबों पर किसी को काबिज नहीं होने दिया जाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से पार्टी अहदेदारों का इजलास में स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम खान की शिरकत। इस मौके पर बाबर सलीम ने कहा कि बानी PTI की फाइनल कॉल पर भरपूर कुव्वत और तैयारी के साथ डी चौक पहुंचेंगे।
انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ ہزارہ مانسہرہ سے نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے PK علی امین خان گنڈاپور قافلے کی قیادت کریں گے۔ اس دفعہ واپس آنے کے لیے نہیں جائیں گے، تمام ضروری اشیاء ساتھ لے کر چلیں گے۔ خانپور شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں مہنگائی کا جن بے قابو، اشیاء خورونوش میں ہوشربہ اضافہ۔ پرائس کنٹرول کمیٹی میٹھی نیند سو رہی ہے، جبکہ غریب عوام کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی۔ چینی، چاول، دالیں، آٹا، مچھلی، گوشت، مرغی اور فروٹ کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ گوشت 900 سے 1000 روپے کلو، کچی مچھلی اور مرغی کا گوشت بھی 600 سے 700 روپے تک پہنچ چکا، جبکہ خانپور شہر اور گرد و نواح کے علاقوں کی عوام سبزی خریدنے سے بھی قاصر ہے۔ سبزی کھانے والے غریب عوام کا چولہا ٹھنڈا ہو کر رہ گیا۔ خانپور کے شہریوں نے کہا کہ بے ہنگم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کر کے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ضلع مردان کی تحصیل رستم کے علاقے برالے کے عوام منتخب اراکین اسمبلی سے مایوس ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں کے رابطہ پل تعمیر کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول، طلباء، خواتین، بزرگ، شہریوں اور ایمرجنسی کے دوران آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پل کی تعمیر کرنے کے لیے تحریک انصاف کے منتخب ممبران اسمبلی سے کئی بار رابطہ کیا، لیکن 12 سالوں میں ہمارے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ عام انتخابات میں اراکین اسمبلی ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے تو کیے، لیکن کامیابی کے بعد اس طرف دیکھا تک نہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم حکومتی تعاون سے مایوس ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت رابطہ پل تعمیر کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ایک بار پھر MNA مجاہد خان، MPA طفیل انجم سے تحصیل رستم کے علاقے برالے کے مسائل پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ سوابی کے شہری حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہیں، مسائل کو چندے سے حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوابی کے شہری صوبائی حکومت سے انتہائی نالاں ہیں۔ گدون علاقے کے بعد اب ٹوپی شہر کے نوجوانوں نے بھی چندہ مہم شروع کر دی ہے۔ ٹوپی شہر کا اہم بائی پاس جو سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس پر آئے روز حادثات کے باعث اموات ہو چکی۔ اہل علاقہ کے مطابق صوبائی حکومت خاموش تماشائی اور غفلت برتنے میں ماہر بن گئی۔ ہم ووٹ بھی دیں اور چندہ بھی تو پھر حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ خود چارپائیاں لگائے ہوئے ہیں، چندے کر رہے ہیں، چندے مہم کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں، اور صوبائی حکومت مکمل طور پر نااہلی کا شکار ہے، سارے صوبے کا، سارے روڈوں کا۔ ادھر اس نے چارپائی رکھی ہے اور وہ چندہ مہم کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ ادھر بائی پاس میں جو اتنے گڈھے بنے ہوئے ہیں، یہ ہماری صوبائی حکومت کی نااہلی ہے، کیونکہ ان گڈھوں کا جو حال ہے، شام کے وقت اس پہ روزانہ بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تحصیل الائی کے علاقے راشنگ میں سڑکوں کی خستہ حالی اور حکومتی عدم توجہی نے عوام کی زندگی جیرن بنا دی۔ مقامی افراد کو روزمرہ کی نقل و حرکت میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے حکومتی ادارے سنگین مسئلے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بٹاگرام کی سب ڈویژن تحصیل الائی کی تمام سڑکیں تقریباً کنڈرات ہو گئے ہیں، کوئی اس پر کام کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ جو ہے اس پہ کام شروع کر رکھا ہے۔ میں صوبائی حکومت اور ڈپٹی کمشنر بٹاگرام AC الائی سے درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایمنڈار فنڈ سے اس کی ریہیبلیٹیشن کو یقینی بنایا جائے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح تحصیل تخت بھائی میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہری گیس نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صبح اسکول جانے والے بچے اور دفتری حضرات صبح ناشتے کیے بغیر اپنے اسکول اور دفاتر کو جاتے ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹوں سے لے کر 18 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے، جبکہ LPG اور لکڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے حال پر رحم کیجیے اور ہمیں تھوڑا سا ریلیف فراہم کر دیں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع کرک میں لنڈا بازار سج گئے۔ کمبل، رضائیوں اور گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ، دکانداروں نے قیمتیں بھی بڑھا دی۔ مہنگائی کے ستائے عوام مزید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع کرک اور گرد و نواح میں گرم ملبوسات، رضائیوں، کمبلوں اور گرم لحافوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ غریب، سفید پوش اور امیر طبقہ بھی لنڈا بازار جا رہے ہیں۔ خریداروں میں خواتین کی کثیر تعداد شامل ہے، جہاں سے سویٹرز، کوٹ، جرسیاں، جرابیں اور دیگر گرم ملبوسات خریدے جا رہے ہیں۔ لنڈا بازار میں منہ مانگی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف نئے کمبل، رضائیاں بھی شہریوں کے پہنچ سے دور ہو چکی۔ عوام و سماجی حلقوں نے حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی۔ لوور دیر میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری کے بعد تمر گرہ میں لنڈا بازار سج گیا۔ مہنگائی کے باعث عوام پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद लंडा बाजार में खरीदारों की कमी है। महंगाई के सबब सफेद पोश तबका लंडे बाजार के गर्म मलबूसात खरीदने से भी महरूम हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी। गुजारा चलती है थोड़ा, लेकिन पिछले साल पे रश बहुत ज़्यादा था। आज बिल्कुल महंगाई है ज़्यादा, हर चीज़ महंगाई है, इस वजह से हर बंदा परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही नौशहरा के तीनों तहसीलों में लंडा बाजार सज गए, मगर चीजें महंगे होने की वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। खरीदार ना होने की वजह से दुकानदारों के साथ साथ खरीदार भी परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल लंडे के माल की कीमतें भी ज्यादा हैं। जो माल लाते हैं उस पर भारी टैक्सेस लग जाते हैं। मुतवसत तबके के लिए अब लंडा बाजार से खरीदारी मुमकिन नजर नहीं आ रही। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ चित्राल के रवायती गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया। फताउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सर्दी शुरू होते ही चित्राली पट्टी से बनाए गए गर्म मलबूसात, चित्राली टोपी, वस्काट, चोगा, शाल और दीगर मलबूसात की मांग में इजाफा हो जाता है। चित्राल बाजार में चित्राली पट्टी से बनाए गए इन मलबूसात के दुकानों में ग्राहकों का रश बन जाता है। इन गर्म कपड़ों को न सिर्फ चित्राल के लोग बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बहुत शौक से ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सकाफत का चोगा है, टोपी है, ये हम अक्सर सर्दियों में गर्म के लिए पहनते हैं। तो ये भी मेरा रिवाज भी है हमारा मुल्क का, ये हम पहनते हैं। कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको भी देते हैं। ये सर्दियों में गर्म भी होता है, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं इसको। और है ये बहुत अच्छा चीज़ है। बहरहाल चित्राल का ये मशहूर चीज़ है। ये होता है चित्राली पट्टी होता है और चित्राली टोपियाँ भी होते हैं, चित्राली जराब होते हैं और चित्राली स्वेटर होते हैं। ये अक्सर सर्दियों के लिए लोग बनाते हैं। बहरहाल यहाँ लोग आकर इसको ख़रीद करते हैं। सर्दी से बचाव के लिए चित्राली पट्टी के गर्म मलबूसात को सर्दी के मौसम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंसान सर्दी से बचने के साथ साथ अपनी शख्सियत में भी निखार पैदा करता है। फताउल्लाह, ABN न्यूज़, लॉर्ड चित्राल। सिंध का रुख करते हुए नवाबशाह से खबर देंगे। नवाबशाह में शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की नहली मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज हैवी गाड़ियों को सकरंड और काजी अहमद से मेहरान हाईवे पर छोड़ा जाने लगा। मेहरान हाईवे पर हादसात में इजाफा होने लगा। कौमी शाहरा से कराची से पंजाब जाने वाली ट्रैफिक को पुलिस मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर काजी अहमद और सकरंड से ट्रैफिक का रुख मेहरान हाईवे की जानिब मोड़ दिया जाता है। मेहरान हाईवे सिंगल रोड होने के बायस आए रोज हैवी गाड़ियों के बायस हादसात होने लगे और कई कीमतें जाने ज़ाया होने लगी। शहरियों का कहना था कि मेहरान हाईवे पर इंतजामिया की जानिब से हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। बलूचिस्तान के रुख करते हुए आपको खबर दें, जिला इंतजामिया सोहबतपुर नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ और रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा ने शहर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वहां पर सफाई सुथराई, सरकारी रेट लिस्ट और खरीदारों से रेट के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा ने दुकानदारों को सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिला इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमन में 3 रोज़ा एजुकेशनल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सैयद शहाबुद्दीन और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में 3 रोज़ा एजुकेशनल फेस्टिवल रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई थे। मेहमानों ने तुलबा और तालिबात की जानिब से बनाए गए मॉडल्स के मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का कहना था कि तुलबा और तालिबात कौम के मेमार और मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत हैं।
आज़ाद कश्मीर का रुख करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासत के निज़ाम को आईन व कानून के ताबे कर दिया है। वकला मुआशरे का अहम हिस्सा, वकला की हेल्थ इंश्योरेंस समेत तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। वकला कन्वेंशन मुनाकिद करवाएं जिसमें तमाम मकतबाए फ़िक्र के लोगों को मदऊ करें। हमने मिलकर मुआशरे को तनज़्ज़ुरी से बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से सेंट्रल बार के वफ़द की मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत के अवाम के टैक्सों के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने कहा है कि कश्मीरी अवाम किसी सूरत तकसीम कश्मीर तस्लीम नहीं करेंगे। मोदी चाहे मसला कश्मीर को ख़त्म करने के लिए जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले, कश्मीरी उसकी तमाम मकरू तदबीरें नाकाम बना देंगे। सदर आज़ाद कश्मीर का कोटली में बात करते हुए कहना था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा उनकी जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़ा है। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है। रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली अशिया भी अब महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मजीद देखते हैं मीरपुर से इमरान चौधरी की ये रिपोर्ट। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सब्जियां और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब दिहाड़ीदार तबके के लिए घर के चूल्हे भी चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। इस वास्ते टमाटर, प्याज, नावला, शिमला मिर्चा वगैरह काफ़ी महंगी हो गई ने, लिहाजा इंतजामिया वाला थोड़ी तवज्जो दे। उस तो बाद सफाई सुथराई के हवाले नाल भी ध्यान करे। गरीब के बस में कोई बात नहीं रही, कोई चीज़ खाने वाली नहीं रही। जो आम जो है टमाटर जो है जो इंतहाई महंगा हो चुका है, 200 रुपये किलो। अब बताएं इससे हम गरीबों का कैसे गुजारा हो सकता है, बहुत मुश्किल। 51-52 सौ नार नहीं पेटी है, 400 रुपये किलो असा वेच के 200-300 रुपया असा पेटी पिछे छड़ने। खैर भी आई गए गाहक तराज करने 300 350 दियो। इस तुसा सुबह टाइम जनाब आवो, आई गए मंडी ने रेट चेक करो। फिर आई गए तुसा समझो दुकानदार की उस हिसाब नाल रेट लिस्ट दियो। 24-23 तारीख पाकिस्तान दे हड़तालें दे बंद न ते इत्थे माल घट आंदा है। क्यों छोटी जी मंडी है, कोई वड्डी मंडी नहीं ना, इंटरनेशनल लाहौर है, इस्लामाबाद है। तो इत्थे मुसीबत ये जेह्ड़े है वड्डे दुकानदार उस स्टाक का छड़दे ना, बाद ये महंगा। असें कोल ते जो रोज़ आंदा है असां उस रेट दे 10-20 रुपये रख के बेच छड़दे। दूसरी जानब ताजरों का कहना है कि हमें मंडी से सब्जियां महंगी मिलती हैं, आवाम को कैसे सस्ती दें। ज़िले इंतजामिया मीरपुर से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को फिलफोर कंट्रोल करे ताकि गरीब का चूल्हा आसानी से चल सके। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, ABN न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। वादी नीलम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेलर्स ने एहतजाज करते हुए बेनिफिशरीज को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके रद्द-ए-अमल में खवातीन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज किया और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया। खवातीन का कहना था कि हम गरीब लोग हैं और रोजाना दूर दराज इलाकों से घंटों की मसाफत तय करके आते हैं। डडियाल आज़ाद कश्मीर में महंगाई की शरह बढ़ने का सिलसिला जारी। बसोई महंगाई के तूफान ने तहसील भर में इंतजामिया की नाहली का पोल खोल के रख दिया। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने के बजाय ज़ख़ीरा अंदोज़ों जायद कीमतें वसूल करने वालों की पुश्तपनाही में मसरूफ़ अमल नजर आ रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी जब भी मार्केटों का दौरा करते हैं महंगाई मजीद बढ़ जाती है। डडियाल में तैनात सिफारिशी इंतजामिया की अशराबाद पर मसूई महंगाई का तूफान बरपा है। क्वीरेटा मिलाद चौक से संगमवाला तक सड़क टूट फूट का शिकार, जबकि ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। 3-4 महीने से ये ठेकेदार साहब ने मिट्टी डाली है, ठीक है, मिट्टी डाल के भूल के चले गए। इसका कोई पूछना भी है या नहीं पूछना है। रोज़ हम 500 का पानी डालते हैं इधर सड़क पे, मिट्टी से दुकानों का बुरा हाल हुआ हुआ है, कपड़े की सत्यानाश हो चुकी है। दुकानदार बाजार नहीं हालत तकी लो, ये 2-3 साल पहले इतने खड्डा पे आ रहा है तो मुड़ी तो उन्हें मिट्टी पाई 8 महीने तो उस तो बाद कोई पुरसाने हाल ही नहीं, सारे थे बंदे मरीज बने हुए ने। नाबीना अफराद ने मुतालबात की अदम मंजूरी इंतजामिया की जानिब से टॉर्चर करने पर संगीन नताज की धमकी दे दी। प्रेस क्लब रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजूर अफराद का कहना था हमारे हकूक गस्ब किए जा रहे हैं, हमारे मसाइल हल करने के बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हमारी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुशीर हुकूमत मोहतरमा सबिहा सदीक ने चढ़ोई के अवाम के लिए 9 करोड़ रुपए की खती रकम मंजूर करवाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चढ़ोई के अवाम की तरफ से शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर रक्स, फूलों की पत्तियां निछावर। चंद रोज कबल मुशीर हुकूमत ने अहलियान चढ़ोई के लिए 9 करोड़
का प्रोजेक्ट बिजली की बेहतरी के लिए एक्सप्रेस फीडर्स की सूरत में दिया, जिसके लिए चढ़ोई में अंजुमन ताजरान और एक्शन कमेटी की तरफ से 130 दिन से जायद का एहतजाजी धरना किया गया था। वादी अलीपा में फौज और महकमे सेहत आमा आज़ाद कश्मीर के इश्तराक से वादी अलीपा में मौसम सरमा की बीमारियों और वबाओं की रोकथाम के लिए सिलसिला में मुनक़िदा 2 रोज़ा हेल्थ सेमिनार इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी सेशन में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लीपा में बच्चों को मौसमियाती बीमारियों से आगाही और बचाव के लिए पाक फौज और महकमे हेल्थ के माहिर डॉक्टर्स ने लेक्चर्स दिए हैं। बाग सानिया ज़लज़ला के बाद माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम करने वाला इदारा फंड्स की कमी के बायस शदीद बहरान का शिकार। ये इदारा सैकड़ों माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम कर चुका। ये इदारा माजूर अफराद के लिए टांगे बाजू जैसे अज़ा फराहम करता है। चल फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने डिसेबिलिटी को मतलब डिस हटा के एक एबिलिटी का नाम दिया, हमें किसी एबल बनाया। हमारे जितने भी लोग हैं जो डोनर हज़रात थे जो अपने ज़कात के पैसे वगैरह हैं वो चल फाउंडेशन को दें, तो ये हमारा जो चल फाउंडेशन है ये बंद होने के करीब। कोटली आज़ाद कश्मीर में ज़िलाई बैनुल मदारिस टूर्नामेंट के सिलसिले में इफ्ताही तकरीब का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रोली में इनेकाद किया गया। ज़िलाई टूर्नामेंट में 15 के तकरीब इदारे शरीक हुए हैं। डीओ जमशेद बुखारी, सदर मौलम हाई स्कूल रोली, डिप्टी डीओ सरदार इदरीस और दीगर ने अपने खिताब में बेहतरीन इंतजामात को सराहा। झेलम वैली में चकोटी लाइन ऑफ कंट्रोल के मुसाफाती इलाके खुलाला वैली में कैफे कश्मीर लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कैप्टन सरवर शहीद 11 और सादात 11 के दरमियान खेला गया। कैप्टन सरवर शहीद 11 ने सादात 11 को शिकस्त देकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। खबर देंगे गिलगित बल्तिस्तान से। गांजे में जिला इंतजामी के ज़रिए तमाम बल्ती कल्चर डे मनाया गया। इस मौके पर कदीम ज़माने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ चीज़ें नुमाइश के लिए रखी गई थी। तकरीबात में सरकारी अफसरान, स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों को बल्ती टोपी पहनाई गई। बल्ती कल्चर डे के दौरान मकामी खाने भी पेश किए गए। खबर से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।